Okay, hello everyone. We will start at 8:05 sharp. Until then, settle down, get yourself a glass of water, and let's have some fun tonight. Today, we are going to have another special guest, Sanchit. He has his own YouTube channel as well with over 2.3 lakh subscribers, and he's an active member of the gaming community as well. So, very excited to have him over here and speak. And yeah, until then, guys, just settle down and welcome to the arcade room. And Sanchit is also here, so I'm just going to invite him on stage. Uh, Mods, can you just, yeah, okay. Hey, hi Sanchit, क्या हाल चाल यार, कैसे हो? हाय I निखिल। I hope you बढ़िया can बढ़िया, आप hear me. बताइए। क्या बोला आपने? I hope आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है. बिल्कुल बिल्कुल, चलो परफेक्ट। बढ़िया बढ़िया. So Sanchit, we are going to wait for 3 minutes. उसके बाद फिर we have couple of rituals that we do. They will barely take 5 minutes, and then we can begin with your session. And Sure. thanks a lot for agreeing to do this. I remember the first time I interacted with you was during the Bada Soch Game Jam. I still remember that entry, यस। and यस। I'm so happy to see that you've come so far away from that time till now, and your persistence speaks a lot for itself. So thank you so much for agreeing to do this, man. नो, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। And yeah, Sanchit, there are a lot of fans of yours as well over here, as you can see, Filson Whisk. So, guys, can we have a quick poll of people who already follow Sanchit? And if you don't, go ahead. He goes on YouTube by the name of Sanchit Game Dev, and he posts some very amazing, interesting content on YouTube. So, I'm gonna find his link and share it over here as well, so you can go ahead and subscribe to his channel. Just a second. हेलो फिल्सन। हेलो मिस्टर बेक्ड बेकर। Mr. Baked Baker. Interesting name. एंड द अदर वन आई कांट प्रोनाउंस। Omicron है अंशराज हाय दश अंश। Zenshell अंश is राज तो काफी एक्टिव फेलो है सारे गेम डेव सर्वर्स में। bro. I used to watch your live streams in Corona time and used to comment when. अरे अंकित, थैंक यू। बड़ा एसी. Yes. Okay, so guys, thank you all for joining in, and we will get started with our session today. So, as we have our first set of rituals that we do, is we take a quick read of the room on which city you guys are joining in from, what games you guys have played, and which mobile phone model do you use. I also have two major announcements to make today. But before we do that, let's go ahead onto the poll page and let's start our polling for the day. So, which city or area are you guys joining from? Go ahead, guys, write in your answers, and I will read them out and post a screenshot of it in the chat. So, go ahead, guys. Which city or area are you guys joining from? So, we've got someone joining from Bharuch,
Someone joining in from Antarctica. दिल्ली, नागपुर, भोपाल, मुंबई, मुंबई की गली से वापस कोई तो आ गया मुंबई की गली से. सो नाइस नाइस नाइस. छपरा, छपरे से कौन ज्वाइन कर रहा है यार? नागपुर. व्हाट एल्स गाइस, हु एल्स कहाँ से ज्वाइन कर रहे हो आप लोग? लेट मी नो. जमशेदपुर, बहादुरगढ़, और कोई कोई स्ट्रिप क्लब से है. भाई कौन से एरिया में हो? पुणे. ओके. भोपाल सस. Okay, so guys, 10 seconds and then we will move on to the next question. जमशेदपुर, आउटर स्पेस से भी है कोई? बढ़िया. मुंबई गलीस, यार दुखती नस पे हाथ रख दिया. एनीवे ठीक है. सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. कोई ढोलकपुर से भी है. चलो, वेलकम टू एवरीवन whoever has joined in from whichever part of the world. Now we move on to the next question, which is which games you have played in this week. So go ahead guys, and while you do that, मैं ये places वाला जो screenshot है वो डाल देता हूँ. So go ahead guys. Finally Nikhil pronounces properly. भारुच, हाँ भारुच तो मुझे पता है. चलो बढ़िया. I'm glad that I was able to pronounce your area properly. Okay, so now which games have you guys played this week? Someone has played his own game, Lighthouse Keeper. That's amazing. Football Club 26, NFS Payback, Hades. मुंबई के लिए कैसे खेल लिया यार? कौन है यार? कौन हो? सोर्स कोड लीक हो गया क्या? स्पाई वीडियो देख फिक्शन. ली. अजय लाइट हाउस कीपर जीबन के साथ खेल लिया किसी ने. Assassin's Creed Black Flag Remake, Lighthouse Keeper, Spy Fiction, Rocket League, GTA 6. Rockstar Games का एम्प्लॉय कोई आ गया लग रहा है. Okay, so another 10 seconds for this poll, then we move on to the last question and then the two major announcements for the day. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bioshock Infinite. Okay, and the last question for the poll, which is which mobile phone model do you use? Go ahead guys. And I'm sharing the screenshot of this as well in Discord. Okay, cool. So which phone model are you guys using? लैंडलाइन वाले फिर से आ गए, पोको वाले आ गए, ब्लैकबेरी कोई यूज़ करता भी है आजकल ब्लैकबेरी. सैटेलाइट फ़ोन, टॉमी वर्सिटी, वेलकम टू द आर्केड रूम. नोकिया 3310, सैमसंग गैलेक्सी मिल्की वे 67, नथिंग फ़ोन, बटन वाला फ़ोन. हाँ भाई, बटन वाला कौन सा फ़ोन? पोको M4 Pro 5G, Motorola G64, Realme 14 Pro, iPhone 19 Ultra Pro Max. वेलकम टू द पास्ट. लाइट हाउस कीपर भाई गेम का नाम नहीं बताना है, फ़ोन का बताना है. चलो, लास्ट 10 सेकेंड्स. बाप के फ़ोन से ट्रम्प मोबाइल. अच्छा चलो, 1098765432 फर्जी आईफोन, ये कहाँ से मिला आपको? अच्छा चलो, दिस इज़ द पोल्स फॉर द डे. नाउ टू मेजर अनाउंसमेंट. वन इज़ अ कंटिन्यूएशन ऑफ द अनाउंसमेंट फ्रॉम लास्ट वीक. सो गाइस, हमने एक गेम जैम होस्ट किया था ऑन दिस सर्वर, and today was the last date of submission. In fact 8 o'clock was the last time for submission. And let's see कि क्या हुआ है. So jam के dashboard में we are going to do a public voting of all the games that were submitted. We got a total of 10 submissions, so would be fairly easy to play through. I will also be covering them on the Arcade Room YouTube channel, तो वहाँ पे जाके आप लोग इन गेम की गेम प्लेस देख सकते हो. But there are some very interesting submissions that have come. I don't know कि अगर आपको ये publicly दिख पाएगी कि नहीं. I'm just going to, okay. So I have shared the link over here. And yes, Ajay, I will be posting the gameplay session on Arcade Room's YouTube channel. That is one. Okay. So guys, we will be taking a public poll for these games in this week. वो होने के बाद I will be announcing the top 3 people that have made the games. Right now there is no
monetization, there is no rewards as such. This was just a small community exercise to just kickstart things. आगे के जो events होंगे, we will try to get sponsors for these events. We will try to see if there can be prize money arranged for this or not. But the first game jam was basically just a pilot wherein we all participated, wherein we had a lot of fun. Next game jam will be relatively shorter, smaller, but bigger in terms of scope. So looking forward to that. And the major announcement, the next major announcement that I wanted to make was uh, regarding what is happening to the flow of games. Okay, so like a couple of weeks ago, I said that we are going to deploy one game of a day, which we were successful in doing so for almost 12 to 13 odd days, and then uh, we got busy building a small business kind of around it. Like we involved an element wherein the developers who are making games can also monetize through them. So I'm very happy to announce that our games are now going to be a part of an exclusive new platform that is being built by a close a colleague of mine. And right now we are trying to onboard all the first few set of games that we launched inside this community to get onboarded onto that platform. I'm going to do a standalone video for this as well, for a standalone announcement as well. But you guys can check out this platform called Oppose. Okay, it is a small platform for instant play games, oppose.com. And right now, as of this moment, we have two of our games onboarded onto this platform. It is a small HTML5 games platform. You can see like some of the games on this platform are already up. If you scroll all the way down, our two games, that is Bloom and Blob Merge Creatures, have been onboarded onto this platform, and this platform will have multiple other games as well. In fact, next week, this platform is also going to open up taking submissions from developers, independent new developers. So you guys can actually use this platform to submit your games, and eventually they will also be having some monetization features through which you can earn money as well. So as of now, there is no monetization on this platform. They're just testing out on how this entire system will work. But very soon they will include monetization elements, and um, arcade room members will get a priority on the game queue. Okay, so if you guys are a part of this community, go ahead, check it out on your mobile phone or your PC, as well as please give your feedback as well. If you don't like something on the platform, go ahead, type it down into the feedback session as well, section as well. So mods, what I would request is for you all to create a dedicated channel to take feedback for Oppose. Okay, so these were the two major announcements, guys. I'll just recap. Game Jam, first Game Jam is finally over. We are now going to move ahead to the public voting, and second part is we are two games have been onboarded onto Oppo's platform, and from next week onwards, they will also be starting to take public submissions for new games, new HTML5 games. And I think maybe some of the games that are built in this Game Jam might also qualify. Who knows? But anyway, so guys, I'll not hog up much of your time, and we'll give the stage to Sanchit. So Sanchit, what we'll do is कि हम we can talk in any language, Hindi or English, whatever you're comfortable with. We will start with your journey. How did you start off as a game developer? And then we will ask people if they have any questions from you. So go ahead, Sanchit, over to you. I will mute yourself, and the stage is all yours now. ओके, थैंक यू निखिल। तो मुझे तो लगा था शायद ये ऐसे ही ओपन सेशन होगा। आई थिंक ओपन सेशन टाइप ही है। तो ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ जर्नी से। किसी को सवाल हो तो चैट में डाल देना, मैं हिंदी में ही बोलता हूँ। मेरे चैनल भी हिंदी में है, तो आई होप आप सबको हिंदी पता है। किसी को नहीं है तो चैट में बताना, देन आई विल स्विच। तो आई थिंक आप सब लोगों का जैसा जर्नी था, ऑलमोस्ट मेरा भी वैसा ही है कि गेम खेलते थे, खूब खेलते थे, पसंद आता था। एंड कुछ गेम्स थे जिन्होंने बहुत ज़्यादा इफेक्ट डाला मेरे पे कि मुझे लगा कैसे ये मतलब कैसे बनाते हैं। अराउंड 9th के आसपास, 8th और 9th 10th जब मैं था, स्पेसिफिकली क्राइसिस 3 उस टाइम मैंने खेला था। उसके बाद
वहाँ से इंटरेस्ट जागा। वहाँ से मैं धीरे धीरे मैंने देखा कि कैसे बनता है, तो समझ में आया कि 4 लाइन ऑफ कोड से नहीं बन रही है जैसा उस टाइम फील आता था, कितना इसमें पैसा और ये सब जा रहा है। तब वहीं से जर्नी चालू हुई। देन फिर एक गेम खेला, द लास्ट ऑफ अस, जिसने ऑलमोस्ट पूरा सा पर्सपेक्टिव चेंज कर दिया। तो वहीं से फिर यूनिटी को एक्सप्लोर करना चालू करा। अराउंड 10th के आसपास हो ही नहीं पाया, बहुत डिफिकल्ट लगा। फिर 11th 12th आया अगेन, जो 11th 12th में सब लोग करते हैं। करना पड़ा मुझे IIT JEE की और उन सब की तैयारी, क्योंकि मुझे चाहिए था कंप्यूटर साइंस। उसी से मुझे लगा कि मैं इसमें परस्यू कर पाऊंगा आगे जाके, कोई भी अगर गेमिंग साइड में मुझे करना है तो। एक फिर प्राइवेट कॉलेज में लिया, KIIT भुवनेश्वर। कॉलेज मेरे हिसाब से तो ठीक ही था, सही था। उसके बाद वहां से बस फर्स्ट ईयर से जैसे ही गुजरा मैं यूनिटी में चालू हो गया। एंड आई थिंक सेकेंड ईयर लॉकडाउन के टाइम पे आपका वो गेम जैम था, बड़ा सोच गेम जैम, उस पर कोई गाना भी बनाया था आपने। तो तब से फिर तब से बस लगे हुए हैं एंड चल ही रहा है। बढ़िया यार। सो यू नो व्हेन आई स्टार्टेड वाचिंग योर कंटेंट, आपका कंटेंट मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। तो कंटेंट क्रिएशन की जर्नी का ख्याल दिमाग में कैसे आया? आई मीन गेम डेवलपमेंट एक पार्ट है, बट यू नो यूट्यूब के ऊपर कंटेंट डालना और कंसिस्टेंटली मैं देख रहा हूँ आपकी जो पाइपलाइन है ऑफ वीडियोस, क्वालिटी भी काफ़ी बढ़िया है। सो फर्स्टली आपको आइडिया कहाँ से आया कि यूट्यूब स्टार्ट करना है, एंड सेकेंडली अभी ये जो पूरी पाइपलाइन है वो आप कैसे मैनेज करते हो? अच्छा, तो इसका फर्स्ट पार्ट है कि जब मैं कॉलेज में था तब भी मैं बनाता था। अगर लॉन्ग फॉर्म वीडियोस मैंने कुछ कुछ चालू करी थी बनाना, जस्ट देखने के लिए कि किस तरह से है। लोगों ने बोला था कि मेरा बोलने के स्किल्स थोड़ा, कुछ टीचर वगैरह ने भी बोला था। मैं ठीक है चालू करता हूँ थोड़ा यूट्यूब वीडियोस बना के, क्या हो सकता है क्या नहीं। तो कॉलेज के टाइम पे मैंने थर्ड ईयर में एक्सपेरिमेंटेशन ऐसे ही चालू करा था। एंड मुझे बहुत, अब मुझे जब तक पसंद नहीं आती वीडियो मैं अपलोड नहीं करता हूँ। तो मुझे टाइम बहुत लग रहा है वीडियो बनाने में। तो मैंने जो 7 days वाली भी बनाई थी उसमें मुझे टाइम बहुत, जितना टाइम मुझे उस गेम को बनाने में ही लगा था उससे ज्यादा मुझे वो वीडियो एडिट वगैरह करके लगा था। इसलिए मैंने उस वीडियो के एंड में बोला भी था कि यार सब्सक्राइब कर लेना। बहुत टाइम लगा है मेरे को। तो वहीं से मैंने चालू करा। सोच तो उस टाइम पे ये थी कि अगर अच्छे सब्सक्राइबर हो जाए, कुछ हो जाए तो यार यूट्यूब तो काफी है, यूट्यूब से बस पैसा आएगा, कुछ आएगा अगर सब्सक्राइबर हो जाए तो। बट मेरा 4th ईयर के, आई थिंक 3rd ईयर के टाइम तक फिर मैं थोड़ा डिसकंटिन्यू हो गया। मैं वापस, सॉरी 3rd ईयर के टाइम पे नहीं, लॉकडाउन का टाइम स्टार्ट हुआ था। मैं गेम्स एक्सप्लोर ही कर रहा था। तो फिर मैं अपने वो ब्लेडर्स मल्टीप्लेयर एक गेम है उसमें जब मैं लगा तो फिर यूट्यूब मेरा छूट गया। क्योंकि मुझे फ्रैंकली एडिटिंग उतना पसंद है नहीं। कंटेंट बनाना अच्छा लगता है, एडिटिंग मुझे बहुत बहुत ही, कैसे बोलूं, नो ऑफेंस टू एडिटर्स, बट मुझे बहुत बोरिंग लगता है। तो आई मीन ये वीडियो एक बार लाइव जाता है उसके बाद जो रिएक्शन है वो देख के मज़ा आता है, बट वो जो एडिटिंग का प्रोसेस है आई वुड हाँ अग्री कि थोड़ा सा बोरिंग है। हाँ, इनफैक्ट ऐसे में होता है ना कि एडिटर को मैं भले ही बता दूं, तो मुझे उस टाइम मेरा एक्चुअली बोल सकते हैं कि एडिटिंग के कारण ही छोड़ा। कि मैं देखा है, मैं जितने में गेम बना लेता हूँ उससे ज्यादा मुझे टाइम एडिटिंग में लग रहा है। और मुझे ऐसा तो है नहीं कि बहुत ही हाई लेवल या प्रोफेशनल एडिटर बनना है। मैं उतना टाइम अपने क्राफ्ट में दूं जो कि यूनिटी या अनरियल जो भी मुझे सीखना है। तो मेरे लिए, मतलब मेरे को भी ज्यादा सही लगेगा और मेरे लिए बेटर भी होगा। इसलिए मैंने एडिटिंग में अपने स्किल्स ना बढ़ाते हुए, एंड इसलिए शायद मेरा उस टाइम, मेरे को लगता है इसलिए मेरा यूट्यूब छूट गया। और फिर मैं ब्लेडर्स में भी लग गया था। तो ब्लेडर्स ने भी अच्छा किया, तो हम उसी में लगे हुए थे 1 आध साल, जब तक फिर मेरी जॉब नहीं लग गई ऑल स्टार गेम्स में। एंड वहां पे फिर क्रिकेट गेम्स बना रहे थे 2 साल हो गए थे ऑलमोस्ट। मुझे कुछ पूछना था? नहीं नहीं, मैं जस्ट ऐसे अनम्यूट कर रखा है। अच्छा, तो फिर मैं वहां से ऑल स्टार गेम्स में अ, लगी जॉब। बट मेरा ऐसी था कि मुझे अगर जॉब ना करना पड़े, मेरे यूट्यूब से सफिशिएंट कुछ हो जाए। इनिशियल स्टार्टिंग में मतलब ऐसा करके कुछ खोला था यूट्यूब चैनल, बट जैसे मैंने कहा वो मेरा छूट ही गया। फिर मैंने ब्लेडर्स पे भी फोकस करा था, कि अगर उससे भी हो। उसमें भी मैंने काफी चीजें हमने करने की कोशिश करी थी। ऐसे गेम काफी सक्सेसफुल था, बट मैं बोलूंगा वो वैसा सक्सेसफुल नहीं था कि जैसे हमारी 4 लोगों की टीम है तो हम फुल टाइम उसमें कर पाए। एंड बाकियों का भी प्लेसमेंट आया था तो टीम भी थोड़ी बिखर गई। और फिर मेरे पास भी एक ऑफर आ गया था ऑलस्टार गेम्स का, तो मैंने भी उधर ज्वाइन कर लिया। ब्लेडर्स का काम उसके बाद भी चला है काफी टाइम तक, जिस उसके बाद फिर वो रुक गया।
पर्पसफुली उसको फिर हमने बंद कर दिया। हमने उसकी लिमिट्स सारी जगह से क्या क्या पॉसिबल है क्या नहीं है, जितना भी मैंने वहाँ ऑल स्टार गेम्स में ज्वाइन करके भी सीखा वो सब भी करके। उसके बाद फिर अराउंड 2 साल हो ही गए थे। जब मैं ब्लेडर्स से फ्री हुआ फिर मैं वापस सोचने में आया कि अब क्या कर सकते हैं। फिर मैंने कहा वापस कंटेंट क्रिएशन करता हूँ साइड में। यूनिटी तो मैं सीख ही रहा हूँ। और मेरा ऐसा था कि दिन भर जॉब करने, दिन भर मेरे ये पीसी में और लैपटॉप में यूनिटी खोला रहता था। फिर मेरे दम नहीं होती थी कि मैं वापस रात में कुछ गेम बनाने के लिए अपना यूनिटी खोलूं। ठीक है, एकदम मेरे को लगा अरे दिन भर तो इसी में बैठा हूँ। तो मैंने इसलिए ठीक है कुछ और करते, इसलिए फिर मैंने ऐसे कंटेंट क्रिएशन सबका सोचा। बनाई तो मैंने पहली वीडियो अगर आप देखेंगे, जो अभी रिसेंट में जब कंटेंट क्रिएशन मैंने वापस चालू करा अराउंड 5 साल बाद, तो मैंने बहुत ही अलग तरह की वीडियो बनाई थी, थोड़ी सिनेमैटिक साइड में वो सब। ठीक है, नॉर्मली ट्राई किया था। गेम जैम की वीडियो थी वो, BYOG गेम जैम। और उस अगेन उस वीडियो को बनाने में मुझे 1-1.5 महीना लगा। पूरी एडिटिंग सब कुछ मैंने करी थी एंड वो चली नहीं। ऑफकोर्स मैं 4.5 साल 5 साल बाद वीडियो डाल एक 4,000 सब्सक्राइबर वाले चैनल पे तो नहीं चलेगी, एक्सपेक्टेड नहीं था, बट बिल्कुल भी नहीं चली। बट मैंने एक शॉर्ट्स डाली ऐसे ही और उसमें 500 व्यूज आए, उसमें 100 व्यूज आए लॉन्ग फॉर्म में, जिसमें मुझे 1.5 महीना लगा। मैंने उस लॉन्ग फॉर्म को प्रमोट करने के लिए शॉर्ट्स डाली और उसमें 500 व्यूज आ गए। तो मुझे लगा ये तो बंद भी जल्दी जाती है शॉर्ट्स। तो हाँ हाँ शॉर्ट्स चालू करता हूँ। तो शॉर्ट्स एक्चुअल मैंने इसलिए चालू करा कि मुझे लगा कि मैं काम के साथ शॉर्ट्स कर सकता हूँ। लॉन्ग फॉर्म में मैं जाऊंगा तो मुझे जब तो मुझे वीडियो सेटिस्फैक्टरी लगेगी मेरा डालने का मन नहीं करेगा। राइट। और उस कारण से मैं लॉन्ग फॉर्म 2 महीने में एक या 3 महीने में एक डाल पाऊंगा। तो मैंने उसको हटाया और फिर मैंने इसलिए शॉर्ट फॉर्म में चूज किया। और आई थिंक ये जो आपकी शॉर्ट फॉर्म वाली स्ट्रैटेजी है काफ़ी इंटरेस्टिंगली चली आपके लिए। और तो कौन सा ऐसा एक टाइम था जब आपको लगा कि यार ये अभी क्लिक होना स्टार्ट हो रहा है? कौन सी वो एक वीडियो थी जो एकदम ब्लो अप होगी, जो जिसको आपने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि यार इतना परफॉर्म कर जाएगी? आई थिंक छोटे छोटे ब्लोअप्स थे, जैसे कैंडी क्रश की मैंने एक वीडियो डाली थी, फिर एक आध डाली थी। मैं नॉर्मली रिकॉर्ड करके करता था। बट मेरी पहली वीडियो जो प्रॉपरली ब्लो हुई, जो अभी भी चैनल की प्रॉब्ली वन ऑफ द हाईएस्ट व्यूज वाली वीडियो है, वो थी एक पैकमैन पे मैंने डाली थी। एंड वो वही सोच के डाली थी कि यार पैकमैन तो इंडिया में सबने खेला है, तो पैकमैन के बारे में लोगों को पता है तो करता हूँ। पैकमैन के बारे में कोई बात भी नहीं कर रहा, तो वही सोच के डाली थी मैंने कि पैकमैन के पीछे जो 4 गोस्ट होते हैं उनका कुछ कुछ डिफरेंट स्टोरीज है, डिफरेंट मीनिंग है। तो वो ये गई थी, 5 मिलियन के आसपास व्यूज आए थे उसमें, तो वही सबसे पहले फटी थी। ओके। तो अभी अभी आप, अक्टूबर 2000। या हाँ बोलिए। तो अभी बेसिकली आपकी जो प्राइमरी ऑडियंस है वो इंडिया में से, राइट? एंड आपका जो करेक्ट। बेसिक सब्सक्राइबर बेस है वो भी काफ़ी अच्छा तगड़ा है। 2.36 लाख सब्सक्राइबर्स इज़ एन इम्प्रेसिव अचीवमेंट, यू नो, फॉर अ गेम डेव क्रिएटर। गेमर्स बहुत सारे हैं बट गेम डेव काफ़ी कम है। एंड यू नो, आई रियली लाइक द फैक्ट कि आप पूरा जो कंटेंट है उसको एकदम सिंपल भाषा में करते हो, जिसकी वजह से आपकी यू नो चैनल की ग्रोथ हुई है। एंड विद दिस ग्रोथ देर इज़ ऑलवेज अ लॉट ऑफ लव ऑल्सो बींग शावर्ड, राइट? तो ऐसे कोई ऐसे यस। कमेंट्स हैं जो आपको ऐसे दिल को छू गए और आपको लगा कि यार यू नो मे बी पैसे इतने नहीं कमा रहे बट थोड़ी बहुत खुशी मिल रही है, एंड आई थिंक दैट्स व्हाट मैटर्स। सो व्हाट वाज दैट वन मोमेंट लाइक फॉर यू? मतलब वो स्पेसिफिकली ये इस मामले में फिंगर्स क्रॉस, मैं थोड़ा वो लकी रहा हूँ कि कमेंट्स मेरे में जनरली काफी सपोर्टिव और अच्छे आते थे। एक आध कभी कुछ आया उल्टा तो आया, बट जनरली कमेंट्स काफी सपोर्टिव और वैसे ही आते थे कि यार तुम वाला कंटेंट बना रहे हो, काफी अच्छा बना रहे हो, अभी व्यूज नहीं आ रहे, कोई नहीं आ जाएंगे। तो इन जनरल ऐसा कोई पर्टिकुलर कमेंट दिमाग में नहीं है, क्योंकि बहुत सारे हैं इन जनरल अम्ब्रेला में कि लोग जो अप्रिशिएट करते थे, तो उसी के कारण से मैं बना पाया। एक हालांकि मैं थोड़ा पीछे जाके जैसा आपने 200 के सब्सक्राइबर्स की बात करी, उस टाइम पे आपके 100 के लगभग हुए थे राइट। सब्सक्राइबर। राइट। तो वहां से भी मुझे एक वो मिला था कि यार आपके अगर सब्सक्राइबर हुए हैं तो मुंबई गलीज के कारण उसमें मेजोरिटी सब्सक्राइबर है, बट करेक्ट। मुंबई गलीज में लोग इंटरेस्टेड है, मतलब हिंदी ऑडियंस है जो इस तरह यहाँ पे इंटरेस्टेड तो है। तो वो काइंड ऑफ एक प्रूफ था कि हाँ उतना तो आई थिंक जाया जा सकता है। तो राइट। मैंने तो वही सोचा था कि 100 की ऑडियंस भी सफिशिएंट होनी चाहिए। राइट। अ, अभी मुझे लगता है कि नहीं है तो बट हाँ वहां से मैंने सोचा था। उस सवाल को आंसर करना कि कोई पर्टिकुलर कमेंट, तो ऐसा पर्टिकुलर कमेंट याद नहीं है, बट हाँ इन जनरल मैं देखता हूँ कि लोग
काफी ही ज्यादा सपोर्टिव है इस चीज को लेकर के, जो लोग स्पेसिफिकली रेगुलर वॉच करते हैं। राइट। एंड एक्चुअली आई थिंक मैंने भी आपके चैनल से काफ़ी सारी चीज़ें सीखी है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं जब इनिशियल में वीडियोस डालता था, काफ़ी आपसे सिमिलर कंटेंट, नॉट इन टर्म्स ऑफ लाइक द फुली एडिटेड क्वालिटी एंड ऑल, बट मेरा कंटेंट वाज समवेयर केटरिंग टू द डेवलपर्स। देन आई रिमेंबर ऑन 20,000 सब्सक्राइबर्स मैंने मुंबई ग्लीज अनाउंस किया था। सो 20,000 से जो 100,000 की जर्नी थी, दैट वाज प्राइमरली गेमिंग ऑडियंस joining my channel to expect content around Mumbai Gullies. However, what actually fascinated me was you were consistent in terms of the development content, कि game development से ही stick करना है, इसी niche को follow करना है. So your channel was in a way a validator for me कि development का भी audience base इतना grow हो सकता है. So I think right now वेयर माई चैनल इज़ स्ट्रगलिंग इन अ वे इज़ कि जो भी लोग आते हैं मेरे चैनल पे वो मुंबई गिलीज के बारे में ही एक्सपेक्ट करते हैं, एज अपोज टू जब मेरा चैनल वॉज एट 20,000 सब्सक्राइबर्स, तब सिर्फ डेवलपमेंट का कंटेंट एक्सपेक्ट करते थे, विच इज़ हैपनिंग कंसिस्टेंटली फॉर यू, एंड आई होप दैट कंटिन्यूज फॉर एवर, एंड आई होप योर चैनल कीप्स ग्रोइंग to 500K, 1 million, and 10 million, so forth, right? So I wish you all the best for that. But yeah, on that note, Sanchit, I think if you have nothing else to talk about, we can take the questions from the audience. Audience के क्या क्या questions है, because वो लोग भी उतावले हो रहे हैं आपके साथ interact करने के लिए. So go for it, Sanchit. Audience में से question कोई भी आप randomly उठा के आप उसको answer कर सकते हो. यस, मैं बिल्कुल ऑडियंस लेता हूँ। मैंने जो भी अभी कहानी बताई है, मैंने जो दिमाग में अभी आया ना वो बताई, मैं बिल्कुल भी ऐसा कुछ प्रिपेयर्ड नहीं था, तो मैं को पक्का विश्वास है मैंने बहुत कुछ मिस किया है इसमें, बट ठीक है, जो भी सवाल है मैं कोशिश करूंगा उससे मैं जवाब दे पाऊँ। तो क्या क्या पूछा है लोगों ने, चलो अभी से पूछो, अभी से जो पूछेगा मैं बताता हूँ। हाँ, मिस्टर बेक्ड बेकर, व्हाई आर नॉट कमिंग इन माय वाईटी फीड। अरे ये YouTube का थोड़ा चक्कर है, पता नहीं। पहले तो चीज यही है कि मेरा भी जो ऑडियंस गैदर हुआ है वो शॉर्ट्स की वजह से हुआ है। रिसेंटली मैंने लॉन्ग फॉर्म में थोड़ा और कंसिस्टेंट होने की कोशिश करी है। अब शॉर्ट्स में बहुत ही ज्यादा एल्गोरिदम ड्रिवन चीजें होती हैं, अगर मैं थोड़ा सा इनकंसिस्टेंट हो जाऊं, एक वीडियो भी ठीक नहीं है, यूट्यूब पुश करता ही नहीं है। आई थिंक वो लॉन्ग फॉर्म में भी सेम ही चीज है थोड़ी सी, बट बहुत ही ज्यादा फ्लक्चुएटिंग एल्गोरिदम रहता है शॉर्ट फॉर्म का। उस कारण से कई के साथ हुआ है जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब भी किया है, बट उसका कुछ मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो फीड यूट्यूब फीड में भेज ही नहीं रहा है। आपको आज का यूट्यूब देख के क्या लगता है, कितना स्कोप है इस इंडस्ट्री में? मतलब इंडस्ट्री में तो बहुत स्कोप है, बट मुझे थोड़ा सा पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछो कि तुम्हें क्या करना है उसमें, उसमें फिर मैं बता पाऊँ कि स्पेसिफिकली जॉब रिलेटेड या क्या। इंडस्ट्री में तो स्कोप है ही, गेमिंग तो बढ़ ही रहा है। मैं भी इसलिए ही हूँ, स्कोप नहीं होता तो मैं भी क्यों होता। ठीक है, फिर हो सकता साइड में गेम बनाता खुशी के लिए, बट स्कोप तो डेफिनेटली है। थोड़ा स्पेसिफिक पूछो तो मैं बताऊँ। व्हाट कैन बी द प्रोसेस टू लर्न फास्टर व्हाइल स्टिल वर्किंग ऑन अदर प्रोजेक्ट्स? आजकल मुझे लगता है फास्ट लर्न करने के लिए तो ऑफ कोर्स क्लॉड एंड जीपीटी इन सब का यूज करना चाहिए, वही एक लौती चीज है जिससे तुम फास्ट लर्न कर सकते हो। तो पहले तो मैं यूडेमी कोर्सेज लेता था, फिर उसमें करता था, और उसमें फिर सवाल पूछते थे तो उसमें जवाब आते थे एक आध दिन में। मुझे लगता है शायद वो लूप पूरा टूट चुका है। कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। आई थिंक यूडेमी कोर्सेज अभी भी काफी वैल्यूएबल है, बट कहीं भी कुछ डाउट है फास्ट लर्न करने के लिए, जल्दी सीखना, जल्दी डाउट्स क्लियर करना, वो सब की जरूरत होती है, जो कि एआई काफी अच्छे से करवा सकता है। मैं कोई गेम बना रहा हूँ क्या? फिलहाल मैं कोई गेम नहीं बना रहा हूँ। प्री प्रोडक्शन टाइप चलते रहता है कि कुछ सोचते हैं, बट कुछ सॉलिड होगा तो बताऊंगा। विल यू प्ले दिस गेम्स? कि अच्छा, तो निखिल आपसे पूछा है। नॉट मैंने कोई गेम पब्लिश किया क्या? तो मैंने सबसे पहला जो गेम प्रॉपर गेम जो पब्लिश किया था वो है ब्लेडर्स मल्टीप्लेयर। प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों में पब्लिश किया था। थोड़ा थोड़ा उसको मैं अपडेट करते रहता हूँ, उसको काफी ज्यादा प्यार मिला। अराउंड 2 मिलियन अक्रॉस डाउनलोड्स हैं उसके। बेब्लेड गेम है, बेब्लेड मल्टीप्लेयर गेम। चेकआउट करके देखना प्ले स्टोर पे। मेन वही है, उसके अलावा छोटे मोटे गेम जो बनाए हैं वो बनाए हैं, बट मेन मेरा गेम मैं उसी से रेफर करता हूँ।
संचित, अच्छा, फ्यूचर स्कोप इन गेम। हाँ, मैंने बताइए। आपकी गेम की लिंक भेज दी है, कैन यू जस्ट कंफर्म, यही है ना? ब्लेडर्स ऑनलाइन हाँ, वन। ये यस। ये ये मैंने अकेले नहीं बनाया था। हाँ, क्रेडिट क्रेडिट मेरा पूरा एक हम 4 लोग थे। इसमें प्रॉपर एक यूआई डिजाइनर थे, एक 3D मॉडलर था, एंड मेरे साथ एक और कोडर। तो 4 लोग थे जिन्होंने हमने इसको बनाया था। अभी गेमिंग इंडस्ट्री में अकेला सिर्फ मैं ही हूँ। बाकी 3 अलग अलग काफी अच्छे एमएनसीज में काम कर रहे हैं। उसकी भी इंफॉर्मेशन एक्चुअली गेम के अंदर डली हुई है, कौन कौन है वो लोग। व्हाट आर योर व्यूज अबाउट एआई इन गेमिंग? इसमें मेरा व्यू एक्चुअली काइंड ऑफ सिमिलर है जो आई थिंक 2K के सीईओ ने बोला था, किसने बोला था, अ, उन्होंने कुछ ऐसा बताया था कि एआई इज बैकवर्ड लुकिंग। जो पहले बन चुका है उसके डेटा के बेसिस पे एआई जो है चीजें बनाता है। गेमिंग इन जनरल इज फॉरवर्ड लुकिंग। जो भी नए गेम्स बना रहे हैं, जैसे GTA 6 आ रहा है, वो फॉरवर्ड लुकिंग, वो कुछ न्यू क्रिएटिव करके आगे बनाते हैं। उस चीज को एआई नहीं ले पाएगा, बट ऑफ कोर्स मुझे ऐसा लगता है कि एआई विल हेल्प इन एवरी सिनेरियो उसको क्रिएट करने का। जैसे आजकल तो मूवीज में भी, सारे ही मूवीज में कहीं ना कहीं एआई यूज हो ही रहा है। एटलीस्ट इन पाइपलाइन तो यूज हो ही रहा है, गेम डेवलपमेंट में भी यूज हो ही रहा है। हमारे कंपनी में भी, मतलब जहाँ मैं काम करता हूँ, वहां पे भी कितने ज्यादा चीजें हैं जो कोशिश करी जा रही है कि आसान हो जाए, क्विक हो जाए, एआई से मैनुअल चीजें ना करनी पड़े। पहले जो चीज हम आउटसोर्स करते थे उसको हटा करके एआई आउटसोर्स कर दिया कि ठीक है, ये काम की जरूरत नहीं है। तो आई थिंक चीजें प्रोसेस फास्ट हो सकती है इससे, यही मेरा व्यूज है। कंप्लीटली रिप्लेस कर दे वो मुझे भी नहीं लगता, अगर वो सवाल है तो। गेम डेव इंडस्ट्रीज में घुसने के लिए आपका अपना फर्स्ट स्टेप इनसाइड गेमिंग इंडस्ट्री कैसे ले? फर्स्ट स्टेप है कि सीखो यूनिटी, अनरियल, जो भी पसंद है। इंडिया के लिए मैं तो यूनिटी बोलता हूँ क्योंकि यहाँ पे उसकी जॉब ज्यादा है, बट तुम अपने पर्पस के हिसाब से सीख सकते हो। एंड उसके बाद कुछ अच्छा बनाओ जिससे कि नोटिस। मैं मेरे स्पेसिफिकली जो काम किया था कि मेरा ब्लेडर्स अच्छा था, तो मेरा रेज्यूमे कहीं पे भी इजीली शॉर्टलिस्ट हो जाता था। इसलिए मैंने एक ही कंपनी में अप्लाई किया था एंड वहीं पे मेरा हो गया। तो वही है कि थोड़ा रेज्यूमे अच्छा बनाओ। प्ले स्टोर एनीवेज चले ना चले बात की बात है, प्ले स्टोर पे पब्लिश करो, ऐप स्टोर पे पब्लिश करो। ऐप स्टोर चलो थोड़ा पब्लिश करना महंगा है उधर, बट प्ले स्टोर पे तो कर ही सकते हो। ठीक है, $25 वन टाइम फीस लगती है और उसमें पब्लिश कर सकते हो। तो उसमें भी एक अलग एज रहता है, क्योंकि इतने बहुत ही, मैं बोलूंगा अब तो बहुत भीड़ हो गई है फॉर बिगनर्स जो चालू करना चाहते हैं इन द गेमिंग इंडस्ट्री। एंड एआई ने कहीं इफेक्ट मारा है तो ये बिगनर्स एंड इन्हीं के लिए ज्यादा मारा है। ठीक है, जो थोड़े एक्सपीरियंस है उनको इतना फर्क नहीं पड़ा एक्चुअली एआई से। सबसे ज्यादा बिगनर्स लोगों का ही, क्या बोलूं, जॉब कटी है। तो संचित, फर्स्ट स्टेप आई थिंक यही है। कुछ और? जी। संचित सॉरी, आप कुछ मतलब इसमें ऐड करना चाहते हो? मेरे को एक्चुअली एक अलग चीज़ करनी है ट्राई, तो वंस यू आर डन लेट हाँ, मी नहीं, नो। ये हो गया। हाँ, ये सवाल हो गया, आप बोल सकते हो। अच्छा अच्छा। अच्छा, सो संचित, हम अभी आर्केड रूम के हिस्ट्री ऑफ सेशंस में फर्स्ट टाइम व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज़ कि वी विल आस्क समवन फ्रॉम द ऑडियंस कि आपका सबसे बड़ा फ़ैन कौन है, और उनको हम स्टेज पे इनवाइट करेंगे सो दैट दे कैन टॉक टू यू सामने से, वन बाय वन ऑन वन। सो एंड वी आर गोइंग टू डू दिस ओनली फॉर वन पर्सन। You get to decide कि किसको स्टेज पे लेना है. So guys, if you guys are a fan of Sanchit, type down in the chat and you will get to talk to Sanchit live right now. So go ahead guys, कौन बात करना चाहता है संचित से? अच्छा, ये करो। मैं इसके पहले एक सवाल का बस जवाब दे देता हूँ। जैसे एक ने लिखा है कि एनी प्लान्स ऑन सपोर्टिंग क्रिएटिंग मिनी सीरीज कवरिंग इंडियन इंडी डेवलपर गेम्स। अब प्रॉब्लम ये, मैंने यूट्यूब में इतने स्केल करने के बाद भी मैंने प्रॉब्लम देखी है कि मैं जब भी ऐसे गेम्स की बात करना चाहता हूँ तो वो चलता ही नहीं है। मतलब मेरे को ऐसा लगा था कि जब मेरे पास ऑडियंस आ जाएगी देन आई कैन, मैं उनको, मतलब पहले मैं ऑडियंस बनाऊंगा और उसमें मैं गेम डेवलपमेंट की बातें करूंगा, पॉपुलर गेम्स की बात कर लूंगा, पबजी से रिलेटेड, जीटीए से रिलेटेड, एंड बीच में धीरे धीरे पिच इन करूंगा जो भी इंडी गेम्स है, ये सब है। मैंने ट्राई किया एंड वो गेम्स तो चलेंगे जहां मैं पबजी की बात कर रहा हूँ, जीटीए की बात कर रहा हूँ, वो वीडियोस चलेंगे। स्पेसिफिकली जहां पे मैं इंडी गेम्स की बात करता हूँ, मतलब लोग देखते ही नहीं है। तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं देखते, बट कंपेयर टू, जैसे कि 2 लाख सब्सक्राइबर है तो उसके बेसिस पे जो व्यूज आने चाहिए वो आते ही नहीं है। तो मैंने काफी कोशिश करी
एंड बीच में एक्चुअली वैसा भी हुआ ही था कि उस चीज के कारण ही मैं बहुत ज्यादा वैसे ही इंडी गेम्स लाने लगा एंड उसके कारण एल्गोरिदम मेरे को ही पनिश करने लगे। तो फिर मैंने बोला रुको, पहले एल्गोरिदम को ठीक करते हैं, फिर वापस बीच बीच में लाएंगे। बट ये एक प्रॉब्लम है कि थोड़ा और डिफिकल्ट है इंडी गेम्स के बारे में उतनी बात करना। स्पेसिफिकली शॉर्ट्स जैसे प्लेटफॉर्म में, अगर मैं स्पेसिफिकली शॉर्ट्स में बना रहा हूँ, इनफैक्ट लॉन्ग फॉर्म में भी लोग अगर ऑलरेडी फैमिलियर नहीं है किसी चीज से, तो बहुत ही कम लोग हैं जो उसको देखना चाहते हैं। बट करेंगे, इसलिए मैं लाइव स्ट्रीम में जरूर करता हूँ। जब भी मैं लाइव स्ट्रीम करता हूँ मैं हमेशा बात करता हूँ, क्योंकि लाइव स्ट्रीम में डेडिकेटेड ऑडियंस आ ही जाती है। आई थिंक मूव ऑन कर सकते हैं। या अच्छा संचित, आई थिंक यहाँ पे मिस्टर बेक्ड बेकर को आगे ले जा रहे हैं, वो जावेद जाफरी जैसे कि ऐसी लाइन में हमेशा कैसे आगे आ जाता हूँ। बट ओमिक्रॉन ओवर हियर वांट्स टू जनरली टॉक टू यू। तो ओमिक्रॉन प्लीज़ कम ऑन स्टेज, इनवाइटिंग यू राइट अवे। आ जाओ, इनवाइट टू स्पीक। यस यस ओमिक्रॉन, मैंने इनविटेशन आपकी एक्सेप्ट कर ली है। यस ओमिक्रॉन, गो अहेड, ओवर टू यू। ओके, सो मैं पहले ऑडियंस से पूछना चाहूंगा कि शुड आई गो टू गेम डेवलपमेंट साइड और शुड वी स्टिक टू कंटेंट क्रिएशन? गेम डेव, यप, सो गेम डेव। सो बेसिकली मैं इतना कहना चाह रहा था, मेरे क्वेश्चन का आपने जवाब दिया कि एआई को यूज करके बेसिकली अप्रोच सही हो जाते हैं, एंड आई एग्री, मैंने यूज करता हूँ मैं। बट कभी कभी मुझे ऐसा फील होता है कि अब एआई से मैंने पूछ लिया, मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड पाथ दे दिया उसने, एंड मैंने उसको बस फॉलो कर लिया। लेकिन फिर मुझे ऐसा लगता है कि इससे मेरी खुद की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप नहीं हो रही। आपका इस पे क्या ओपिनियन है? बिल्कुल 100% सही ओपिनियन है, इसलिए नहीं करना चाहिए मैं बोलूंगा। मेरे खुद के साथ होता है कि जब भी ऐसे क्रंच मोड में होता हूँ मैं फुल ऑन चले जाता हूँ क्लाउड मोड में, ठीक है, कि सब कुछ ऑलमोस्ट वही कर रहा है, मेरे को वही रियलाइज होता है सेम ही चीज कि यार सब चीजें चल तो रही है, मुझे पता है सब ठीक भी मैंने देख लिया, बट मैं अपना इनपुट उतना नहीं दे पाया, मेरा उतना प्रोग्रेस नहीं हो पाया जो मुझे चाहिए, या नई चीज भी जब मैं सीख रहा हूँ तो डेफिनेटली होता है। इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि यार सीखने टाइम या तुम्हें जब करना है तो कुछ टाइम तो तुम हटा ही दो। डिबगिंग के लिए बहुत सही है एआई, बट जब तुम कुछ नया सीख रहे हो, कुछ नया बना रहे हो, तो अवॉइड करो। सीख पर्पस से, जैसे मैं एडिटिंग भी कर रहा हूँ तो काफी बार मौका आता है कि मैं सीख रहा हूँ। अब अगर अनलेस अनटिल डेडलाइन है तो मैं तो वही कहूंगा कि फटाक से बनाया, उस टाइम टाइम इंपॉर्टेंट है, बट अगर टाइम है तो टाइम निकाल के पूरा खुद से करना चाहिए, नहीं तो डेफिनेटली इफेक्ट होगा। पर्सनल स्किल्स इफेक्ट हो रहे हैं उसके कारण, और बहुतों के हो रहे हैं। जितने भी नए लोग आ रहे हैं उन वो हो ही रहा है, बिना ये कि नहीं बना पा रहे कोड। तो फिर अगर मैं खुद से सीखूं तो मैं खुद को वैलिडेट कैसे करूं कि मैं जो कर रहा हूँ वो मैं सही कर रहा हूँ या मैं गलत कर रहा हूँ? क्योंकि इवन राइट नाउ मैंने एक्सपीरियंस किया कि मैं एक एनिमी बनाना ट्राई कर रहा था, एंड आई हैव यूज्ड अ फाइनाइट स्टेट मशीन, बट नाउ आई रियलाइज कि मेरे अप्रोच के लिए बिहेवियर ग्राफ ज्यादा सही रहेगी, एंड अब मुझे ऑलमोस्ट मैंने जो भी बनाया है उसके ऊपर पूरा रिवर्क करना पड़ेगा। सो हाउ डू आई वैलिडेट माई सेल्फ? अच्छा, ये इनफैक्ट ये चीज अवॉइड करो कि पहले बना लिया फिर रियलाइजेशन हो रहा है। ये होगा, मतलब इसमें कोई वैसा नहीं है कि एकदम ही बहुत बड़ी गलती कर दी, बट सबसे बेटर वही है कि बनाने के पहले सब चीज सोच ली जाए। उतना ही हाई, मतलब उतना ही दूर का तुम्हारा विजन होगा कि पहले ही तुमने सोच लिया, ये गलती पहले ही सोच लेते तो ज्यादा बेटर होता। उस चीज के लिए तुम एआई का जरूर यूज कर सकते हो। मैं इस चीज के लिए डेफिनेटली यूज करता हूँ हमेशा कि यार सारे अप्रोचेस क्या है मुझे पता है। जैसे जनरली क्या होता है, मुझे पता है ये एक अप्रोच है, मेरे दिमाग में आ रहा होता है ये एक अप्रोच है, ऐसे कर लेता हूँ। बट जब मुझे सीखना होता है तो मैं अप्रोच डालता हूँ, मैं बोलता हूँ और क्या अप्रोचेस है बेटर जो करी जा सकती है, और नहीं भी है बेटर तो बताओ जितनी भी अप्रोचेस है। और इस वजह से मुझे काफी बार काफी नई चीजें सीखने को मिली है। इनफैक्ट जब मैं वीडियो भी बना रहा हूँ तब भी मुझे कुछ फैक्ट पता है, क्या पता है वो है उसके अराउंड क्या क्या चीजें है। तो सर्चिंग एंड क्योंकि वो सर्च करेगा ना बेसिकली, मान लो कि एआई के पास तो पूरा डेटाबेस है, तो वो काफी बार बहुत सही चीजें बता पाते हैं इन मामलों में। उसको तुम बोलोगे कि इस चीज को सॉल्व करके दे दो, वो अपने हिसाब से एक अप्रोच डिसाइड करके सॉल्व करके दे देगा, जो कि उतना काम का नहीं है। उस चीज के लिए सीखने के लिए इस्तेमाल मत करो, करने के लिए भी मत करो। हमेशा उससे पूछो क्या अप्रोचेस हैं क्या नहीं है, डिस्कस मोर। मतलब हाँ, ये अप्रोच मैं यूज करता हूँ हमेशा। सीधे कोड पे आना ही नहीं है। मेरे क्लॉड में भी इंटरनली मैंने हर जगह डाल रखा है कि कोड मुझे देना ही नहीं है। पहले जवाब में कोड कभी दे मत देना, पहले पूरा डिस्कस होगा, उसके बाद जब
होता है ना कि आपस में डिस्कस करके एक कंक्लूजन पे हम पहुंच जाए, फिर ही फाइनली कोड लिखा जाएगा, नहीं तो उसके पहले नहीं। तो एआई को डिस्कस करने के लिए जरूर यूज करो, फिर कोड लिखने की बारी है तो वो तुम यूज लिख लो, नहीं हो रहा है and तो एआई से लिखवा लो। and how can we manage our time, क्योंकि अब for a beginner जो like मैंने एक मिस्टेक जो खुद से की है वो कि मैंने 3-4 गेम्स बनाए and then मैंने अपना खुद का प्रोजेक्ट उठा लिया कि अब मुझे ये बनाना है, and now I feel stuck क्योंकि कितनी चीजें मुझे खुद पहले सीखनी पड़ती है and then बनानी पड़ती है, फिर से सीखनी पड़ती है, बनानी पड़ती है। So like how can I manage the learning and make it both well? Is there any way for it? नहीं, पहले 3-4 प्रोजेक्ट खुद के बना लिए। मतलब एक बार फिर से बोलना सवाल। मैं ऐसा कह रहा हूँ, मैंने एक मिस्टेक की थी, लाइक मैंने स्मॉल गेम्स से ज्यादा नहीं बना, मैंने बस 3-4 ठीक है। यूनिटी सीखने के लिए बना लिए। हाँ, अब मुझे यूनिटी का एक बेसिक आइडिया है एंड देन नाउ आई विल मेक द गेम दैट आई वांटेड टू मेक ऑलवेज, बेसिकली एक एफपीएस शूटर गेम। तो नाउ आई फील ठीक है। स्टक क्योंकि अब मुझे नई चीजें भी एक साथ में सीखनी पड़ रही है एंड मुझे डेवलपमेंट भी करना पड़ रहा है साथ साथ, एंड सो मतलब दोनों के बीच में मैनेज कैसे करें कि मैं एक साइड पे लर्न कर रहा हूँ एंड दूसरे साइड में काम कर रहा हूँ, ऐसे सिचुएशन है। अच्छा, इसमें मेरा ऐसे 2 ओपिनियन है कि पहला तो ये हमेशा चलते रहेगा, मतलब काम करते करते सीखते रहोगे ही। मैं भी आज सीख रहा हूँ और मेरे जो सीनियर्स हैं वो भी सीख रहे हैं, तो वो प्रोसेस तो हमेशा चलेगा। दूसरा प्रोसेस है कि अगर तुम्हें बेसिक्स नहीं सीखे या बेसिक्स नहीं सीखे हो तो एटलीस्ट वो मतलब उतना सीख लो कि फॉर एग्जांपल इवेंट सिस्टम नहीं पता है यूनिटी का, कुछ चीजें नहीं पता है, फाइनाइट स्टेट मशीन सब नहीं पता है, तो बेसिक आना चाहिए उसके पहले कि तुम खुद का गेम बनाओ, या उसके पहले भी बना सकते हो, बट एटलीस्ट बेसिक्स अगर स्ट्रांग है तो फिर तुम इसको थोड़ा एक एग्जांपल से समझा जा सकता है कि तुमने स्विमिंग के बेसिक्स अगर लर्न कर लिए, कोई एक भी टेक्निक आती है, उसके बाद तुम जाके एक्सपेरिमेंटेशन करते रहो, अलग अलग तरह की स्विमिंग सीखो, जो भी करना है सीखो, तालाब में जाओ, जैसा जाना है, बट एक बेसिक आना चाहिए। तो अगर तुम्हारा बेसिक्स ऑफ कोड या कोडिंग इन जनरल प्रोग्रामिंग क्लियर है, उसके बाद तुम गेम बनाते बनाते कुछ भी सीख सकते हो, कहीं पे भी जा सकते हो, और वो कभी बंद नहीं होने वाला। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है मैं सीख जाऊंगा 100%, वो नहीं होगा। टेक्नोलॉजी बहुत ही जल्दी इवॉल्व कर रही है, तो इट्स हार्ड टू साथ साथ कैचअप करना। Yeah. So Sanchit, this was our first special guest who got to talk to you directly, and इसके पहले के जो गेस्ट अच्छा, आए थे, या गुड गुड। एक आई थिंक उसने माइक्रोन ने ही सवाल पूछा कि आई नो दोस बेसिक्स बट टॉकिंग अबाउट एडवांस। एडवांस में भी मैं जनरली जब ऐसा मुझे फील आता है कि यार ये आता नहीं है यार, मेरे को 4-5 साल का एक्सपीरियंस हो गया और ये चीज मेरे को नहीं आ रही है, ऐसा लग सकता है, ठीक है, ऐसा हमेशा लगेगा। तो फिर मैं वही वापस पोलो बेसिक्स पे वापस जाता हूँ कि ये अब जो एडवांस है वो अब बेसिक हो गया है, जब इतना एक्सपीरियंस हो गया तो एडवांस और बेसिक है, उसको सीखना पड़ेगा वापस सेम ही तरीके से। जब मैं सीखने वाले मोड में जाता हूँ तो फिर मैं सीखता हूँ कि यार इसको सीखा जाए, प्रोजेक्ट बनेगा साइड में, बट पहले इसको सीख लिया जाए। अगर ऐसा डाउट आ रहा है कि यार नहीं हो पा रहा, ठीक है, जब फॉर एग्जाम्पल कुछ भी चीज बना रहा हूँ और मुझे लग रहा है कि यार ये मैं बिना एआई या उसके नहीं बना पाऊंगा, इसके लिए सीख जानना बहुत जरूरी है। एडिटर के कुछ टूल्स बना रहे हैं, जैसे हमने बीच में कुछ काफी पूरा ऑटोमेशन करा था बिल्ड वगैरह बनाने का, तो उसमें मेरे को लग रहा था यार ये खुद से कैसे बनाऊंगा मैं वापस गया, वही ऐसा बोलो ड्राइंग बोर्ड में वापस गया कि यार एक एक चीज क्या लिखी है सीआई ने, पूरा क्या है, स्टार्टिंग से कैसे मैं उसको बना सकता हूँ। जैसे सीखते हो स्टार्टिंग में इम्पोस्टर सिंड्रोम टाइप के लगेगा कि ये नहीं हो रहा है मेरे से, ठीक है, बट अगेन धीरे धीरे होने लगेगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो मैं बेसिक वाली बात कर रहा हूँ, एडवांस के लिए भी वही चीज काम आती है। जब तुम बेसिक सीख चुके होगे, कुछ गेम बना चुके होगे, फिर स्केल अप करना होगा, लेवल अप करना होगा, अगेन वो जो जैसे तुमने बेसिक सीखा वैसे ही तुम एडवांस सीखोगे वापस जा करके एंड उस चीज को दोबारा करके। सो बेसिकली व्हाट यू आर ट्राइंग टू से इज कि ट्राई करते रहो जब तक सक्सीड नहीं होते, राइट? हाँ वो तो है ही, बट आई थिंक वो सवाल पूछना चाह रहे थे कि मैनेज मैं कैसे करूं, साथ साथ मेरे को प्रोजेक्ट भी बनाना है एंड सीखना भी है, राइट। तो उसमें मेरा वन लाइन आंसर अगर होगा तो ये चीज तो हमेशा चलती रहेगी कि तुम प्रोजेक्ट बना रहे हो और सीख रहे हो, बट तुम्हें बहुत ही ऐसा डाउट आ रहा है कि यार मुझे आता ही नहीं है कुछ, इसको सीखना पड़ेगा, तो प्रोजेक्ट को थोड़ा पॉज कर लो, थोड़ा हफ्ते 10 दिन या 1 महीने के लिए सीखने के मोड में चले जाओ कंप्लीटली एंड सीखो, फिर वापस आ जाओ प्रोजेक्ट पे। बढ़िया बढ़िया।
So Sanchit, we can go on, but I would request you to stay in the server और ऐसे ही सारे डेवलपर कम्युनिटी को मोटिवेट करते रहो और वीडियोस बनाते रहो. बिल्कुल. काफ़ी अच्छा लगा कि आप इस सेशन में आए एंड इतने सारे क्वेश्चंस आंसर किए. कोई एक पीस ऑफ एडवाइस आपकी साइड से टू द डेवलपर कम्युनिटी या फिर गेमिंग कम्युनिटी इन जनरल, एनी लास्ट वर्ड्स और स्टेटमेंट्स फ्रॉम योर साइड? लास्ट वर्ड्स एंड स्टेटमेंट्स, आई थिंक आपसे ये अभी जितने भी है ये कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं या स्कूल मेजोरिटी आपके सर्वर में, ये जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है कॉलेज स्कूल. अच्छा, ओके, कॉलेज में अच्छा कोई जॉब भी कर रहा है तो मतलब मुझे एक पीस ऑफ एडवाइस, वो गेम डेव से रिलेटेड नहीं है बट मुझे लगता है कि वो रहनी चाहिए टू बी अवेयर कि मैं थोड़ा पहले ऐसा था कि यार मुझे यही होता ना यूनिटी वाली ही जॉब करनी है, मेरे को यही चाहिए, ठीक है, भले ही कुछ और बेटर भी मिल रहा हो तो नहीं, मेरे को भले ही तुम फ्री में करवा लो, मैं यूनिटी वाले ही काम करूंगा. तो मुझे लगता है थोड़ा अवेयर रहना चाहिए एंड ऑफ कोर्स किसी एक पर्टिकुलर चीज से थोड़ा स्टक होना चाहिए क्योंकि वो नहीं होंगे तो फिर आगे कैसे बढ़ पाएंगे. बट एक लेवल ऑफ अवेयरनेस रहनी चाहिए कि यार अभी यूनिटी नहीं तो और कुछ करना है क्या, अनरियल करना है या क्या है. तो वो एक अवेयरनेस मेरे को लगता है होगी तो बेटर डिसीजंस इन अपने कैरियर और लाइफ में ले पाओगे. बढ़िया बढ़िया. सो गाइस, दिस वाज संचित फॉर यू ऑल. आई होप आपको आज के सेशन में मज़ा आया होगा और संचित हमारे सर्वर में बने रहेंगे. तो फिर आपको कुछ भी छोटा मोटा डाउट्स वगैरह होगा तो आप उनको बेझिझक पूछ सकते हो. और इनका खुद का एक डिस्कॉर्ड सर्वर भी है, तो अगर आप उसके पार्ट नहीं हो तो आपको संचित के चैनल से, संचित यू कैन फील फ्री टू टाइप इन आपकी लिंक एज वेल ओवर हियर. सो आप उनके डिस्कॉर्ड सर्वर को भी ज्वाइन कीजिए एंड इसी तरीके से अपनी गेमिंग कम्युनिटी को एक्टिव रखते हैं. एंड गाइस, वंस अगेन थैंक यू ऑल फॉर हुएवर पार्टिसिपेटेड इन द गेम जैम. 10 एंट्रीज़ आई है अभी. इसकी पब्लिक वोटिंग फ्रॉम विद इन द कम्युनिटी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं. तो गो हेड गाइस, गेम्स को खेलो, ट्राई आउट करो. मैं भी अभी सबमिशंस के लिए रुका था तो मैंने भी सारे गेम्स अब तक खेले हैं नहीं. तो फिर नेक्स्ट वीक में वी विल रीअसेंबल एंड नेक्स्ट वीक में वी विल प्ले ऑल द गेम्स दैट आर सबमिटेड इन द गेम जैम. साथ ही साथ बिग न्यूज़ इनकमिंग फॉर द डेवलपर कम्युनिटी ओवर हियर एज वेल. ओपोज प्लेटफॉर्म इज़ अ न्यू प्लेटफॉर्म फॉर इंस्टेंट प्ले गेम्स, जहाँ पे अपने पहले 2 गेम्स डिप्लॉय हो चुके हैं, ब्लूम एंड ब्लॉब मर्ज क्रीचर्स. Next week, developers will be opening up to submit your games onto their platform. अभी फ़िलहाल it is in a very nascent stage, तो if you have any feedback for this platform, go ahead and type it down. The developers of this platform are also a part of this community itself. So they are actively reading your comments, or they will kind of keep on improving the platform as we go ahead. So go ahead, check out oppoz.com, oppoz.com. It can be played seamlessly on mobile as well. Primarily mobile platform के लिए बनाया गया है, बट अभी फ़िलहाल वेब इंटरफेस पे भी चल रहा है, तो आप डेस्कटॉप के ऊपर से भी खेल सकते हो. सो गाइज, दैट्स इट फॉर टुडेज़ सेशन. आई होप आपको मज़ा आया होगा. एंड अभी गेम जैम की जो एंट्रीज़ है उनके थ्रू थोड़ा सा देखना स्टार्ट करने वाला हूँ. सो आप लोग भी ट्राई आउट करो गेम जैम की एंट्रीज़. And who knows, maybe one of these games also makes it to oppoz.com. So that's it for today's session. Sanchit, once again, thank you so much for joining in. And please, आप community के साथ बने रहिए. And जब भी आपका कोई नया गेम आता है, please feel free to share it with our community as well. So yeah, that's it guys. That's it for this session. I hope you guys have a wonderful evening ahead. And guys, सोने से पहले ब्रश करना मत भूलिएगा. दांतों का ख्याल रखना ज़रूरी है, अपनी हेल्थ का ख्याल रखना ज़रूरी है. इसी एक छोटे से मैसेज के साथ मैं मिलता हूँ आपको मेरे अगले सेशन में आर्केड रूम के, जो होगा अगले मंडे. तब तक के लिए अपना ख्याल रखना गाइस. बाय बाय. थैंक यू, बाय.